Good morning, students. I hope you are doing fine today. We are going to move forward with the DIY section. We are going to move to page number 9, and on page number 9 you will find 4 questions. Let's go through these questions first. First is question number 1. Convert the following temperature to Celsius scale. Okay, now you are given 2 parts in this question, A and B. What you need to do is that you need to convert these temperatures, Kelvin temperatures, into Celsius. For those who don't know, टेम्परेचर्स हम लोग यूजुअली 3 टाइप की यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं. केल्विन में कैलकुलेट करते हैं, सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं एंड फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं. दीज आर द 3 मोस्ट बेसिक यूनिट्स फॉर कैलकुलेटिंग टेम्परेचर्स. हमारे सामने अभी क्या है, केल्विन और सेल्सियस. तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस. अब for that you need to understand one thing, that Celsius can be converted into Kelvin. You just need to know about the value. The value is basically understood as that 0 degrees Celsius is equal to 273 Kelvin. Zero degree Celsius equals to 273 Kelvin. Alright, so this value you need to remember. So that means if you want to convert Celsius into Kelvin, so you will have to do what? You will have to add 273 into whatever the value you have. Alright, and if you need to do the reverse, so what will you need to do? You will need to subtract 273 from the value that you have. Okay, let's try this in our question. Okay, the question is we have to convert 300 Kelvin. First off, we have to convert 300 Kelvin into Celsius. So if 0 degrees Celsius is equal to 273 Kelvin, so that means 300 minus 273 equals to how much will that be? That will be 27. So this will be our answer of the first question. If we have to convert 300 degrees Kelvin into Celsius, then we will have to subtract like this 273 from 300 and we will get 27 degrees Celsius. So this will be the answer of our first one. And the second one you will have to do it yourself. It is a DIY question. B, 573 Kelvin you will have to convert into Celsius. Alright, now let's look at our question number 2. What is the physical state of matter at, इसमें you have 2 parts. एक तो है 250 डिग्री सेल्सियस और एक है 100 डिग्री सेल्सियस. तो एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर की क्या स्टेट होगी? वी नो दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट होता है वाटर. सो एट 250 डिग्री सेल्सियस स्टिल
इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, स्टीम होना चाहिए, राइट. द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर शुड बी, इट इज़ स्टीम. एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें पता है देन व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग at 100 degree Celsius, and until the whole basically volume of water or whole mass of water is not converted, जब तक कि पूरा जो मास है वाटर का उसकी स्टेट कन्वर्ट नहीं हो जाती है, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है. बिकॉज वी नो द रीज़न फॉर दैट इज़ द लेटेंट हीट. सो इफ़ टेम्परेचर रिमेन सेम, दैट मीन्स at the same temperature water you can also be called as water basically, and you can also call it as steam because उसी temperature पर वो convert भी होता है, right. So steam का temperature भी क्या होगा, 100 degree Celsius होगा during the boiling of water. So B में you can write it as either water or steam. इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो. Because of the latent heat, the temperature remains same whether it is a boiling water or it is steam. Okay, now let's look at the question number 3. For any substance, why does the temperature remains constant during the change of state? All right, so this is what we have studied previously in our section where we were basically studying about the change of state. And we saw that latent heat is basically responsible for change of state, and it basically does not causes change of temperature. So for our question, for any substance, why does the temperature remains constant during the change of state, कि किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है जब उसकी स्टेट चेंज हो रही हो. तो उसका आंसर आप यू कैन यूज़ डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट. आप लेटेंट हीट की डेफिनेशन यूज़ में ले सकते हो, एंड you can put it in a sentence in such a way that it becomes the answer of this question. डेफिनेशन को आप इस तरीके से यूज़ में ले सकते हो कि वो आपके क्वेश्चन के आंसर के फॉर्मेट में आ जाए. एग्जैक्टली आप डेफिनेशन नहीं लिख सकते, बस आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा. इस तरीके से आप लोग उसको लिख सकते हो. अगेन आई वुड लाइक टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स दैट when you are writing answers, write it properly, and once you have written it, you can WhatsApp me the answers that you have written, so that I can check those answers whether the language and everything else is correct about those answers, and then you can write them down in your fair notebook. And if you have already written them in your fair notebook, then still just send me the answers so that we can see if there are any mistakes in that notebook or in that answers. All right, so remember that. Okay, let's move on to question number 4. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट करने का मेथड आपको बताना है. तो वी नो किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम में लेने हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर. ऑलराइट, तो इसमें द मेथड दैट वी कैन यूज़, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. राइट, the method which is used to liquefy atmospheric gases, the method which is used to convert gases into liquid is called condensation. condensation, condensation. alright, so this is the method. इस method में हम वही करते हैं कि we decrease the temperature and we increase the pressure, due to which, or when we decrease the temperature the pressure is increased, due to which the liquid or the gas is converted into liquid. You see this around your cold objects. Let's say a cold water bottle. एक ठंडी पानी की बोतल अगर आप फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हो तो यू विल सी कि उसके आसपास क्या हो जाएगा, बॉटल पे वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेगी आपको आफ्टर सम टाइम. तो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या होती है,
हमारी एयर में जो बॉटल आप बाहर रखी है आपने, राइट, उस बॉटल के आसपास जो एयर में मॉइस्चर होता है ना, वो जैसे ही वो मॉइस्चर टकराता है ठंडी बॉटल से, तो उस मॉइस्चर का जो है टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, राइट। और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है देन प्रेशर इंक्रीजेस, और वो जो मॉइस्चर है, वो जो वाटर वेपर है, छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स हैं एयर में, वो या यूँ बोल सकते हो जो वाटर वेपर प्रेजेंट एयर में, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट के अंदर, एंड दैट इज़ व्हाट यू सी अराउंड योर कोल्ड वाटर बॉटल. Okay, so these are the 4 questions. Some of them I have some of these questions we have done in this video. Some of these questions you will have to do yourself. Okay, let's move on to our next set of questions. You will find these questions on page number 9. So these are the next set of questions. Let's go through them. Let's look at the question number first. Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? ये हमें बताना है कि जो डेजर्ट कूलर है, डेजर्ट कूलर which means a normal cooler that we all have at our homes, most of us have these coolers, and इसमें हमें बताना है कि on a hot dry day, just like these days that right now, जैसे अभी कैसा एकदम गर्म हवा चलती है, एकदम ड्राई हवा चलती है, राइट. तो ऐसे हॉट ड्राई डेज़ में जो कूलर है वो ज़्यादा बेटर कूल क्यों करता है? वो ज़्यादा एक तरीके से ठंडी हवा या ज़्यादा बेटर टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करके रखता है हमारे आसपास. नाउ इसमें एक चीज़ है, यू माइट रिमेंबर कि ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न जब हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस टाइम पे जो कूलर्स हैं वो कूलर्स इतना बेटर वर्क नहीं करते, राइट. अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो दैट ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न जो व्हेन इफ़ वी हैव अ कूलर इन आवर रूम, तो व्हाट हैपन्स इज़ कि हमें इतना ऐसा ठंडा फील नहीं होता. वी डोंट फील कूल, वी फील वार्म. हमारा जो स्वेट है वो भी सूखता नहीं है, राइट. अभी आजकल तो क्या है, कूलर के सामने आप बैठ जाओ, सामने भी नहीं बैठो तो इवन इफ़ यू आर जस्ट इन द रूम, तो आपका स्वेट जल्दी सूख जाता है, राइट. लेकिन दैट डज नॉट हैपन्स ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न. यू कीप हैविंग दीज स्वेट्स, है ना. कूलर एक्चुअली इतना ओवरऑल इतना प्रॉपरली वर्क नहीं करता है ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई डज दैट हैपन्स. तो बिफोर दैट हमें ये समझना है कि कूलर की हमारी वर्किंग कैसी है. सी व्हाट हैपन्स इज़ कि आपको पता है कूलर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. देयर इज़ अ फ़ैन, है ना, देयर इज़ अ बिग फ़ैन, एंड देयर इज़ अ स्पेस जहाँ पर वाटर फिलअप होता है, एंड देयर आर गेट्स, अलग अलग गेट, 2-3 गेट्स होते हैं कूलर के अंदर, और उसमें हम लोग ग्रास या ऐसा कुछ पैडिंग लगाते हैं, है ना. अब व्हाट हैपन्स इज़ जब कूलर चलता है तो जो एक मोटर है वो पानी को उन पैड्स के ऊपर डालती है, राइट. अब जब पानी उन पैड्स के ऊपर डलता है और जो फ़ैन की हवा है, वो हवा इफ़ यू रिमेंबर कि पानी के उन पैड्स पे डलने से एक तरीके से क्या हो रहा है, वाटर का सरफेस एरिया बढ़ रहा है. एक चीज़ तो दैट इज़ हैपनिंग, सरफेस एरिया इज़ इंक्रीजिंग. अनदर थिंग इज़ हैपनिंग, जो फ़ैन है, फ़ैन हवा खींच रहा है, तो इज़ बेसिकली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ विंड अराउंड दोज पैड्स. उन पैड्स के अराउंड काफ़ी सारी विंड क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो फ़ैन है दैट इज़ क्रिएटिंग दैट विंड इफेक्ट. नाउ ये दोनों फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, इट कॉजेज़ द वाटर विच इज़ रनिंग ऑन द पैड्स टू इवेपोरेट. जो पानी पैड्स पे आ रहा है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है बहुत ईजीली, जिससे कि जो वो वाटर वेपर है वो एक तरीके से फ़ैन की हवा के साथ बाहर आते हैं, एंड इट बेसिकली गिव्स अस कूल एयर. वो हमें ठंडी हवा देता है, राइट. नाउ अब क्या डिफरेंस है बिटवीन अ मॉनसून सीज़न एंड लाइक राइट नाउ दिस समर ड्राई सीज़न? डिफरेंस ये है कि मॉनसून सीज़न में देयर इज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट,
right? There is a lot of moisture present. So even if सबसे पहली बात तो ये है कि जो इवेपोरेशन हमने देखा, जो पैड्स में इवेपोरेशन होता है, वो इवेपोरेशन इतना ज़्यादा हो नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी देयर इज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट। ऑल्सो जब हमें वो हवा लगती है तो हमारा स्वेट भी इवेपोरेट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। तो हमें भी बेसिकली ठंडा फील नहीं होता है, बिकॉज एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि इवेपोरेशन होता है तो हमें कूल फील होता है, बिकॉज इवेपोरेशन बेसिकली हैपन्स जब मॉलिक्यूल्स take energy and they evaporate, right? We have seen all of those things. You can look at the previous videos to understand. So all in all, during monsoon there is already moisture present everywhere. So पहली बात तो इतना वेपर क्रिएट नहीं हो पाता इनसाइड द कूलर जिससे कि ठंडी हवा बाहर तक आए, और जितनी भी ठंडी हवा आती है वो हमारे स्वेट को भी इवेपोरेट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हमें भी ठंडा फील नहीं होता। But on the other hand, what happens during a hot dry day, there is no moisture present, right? There is no moisture present. तो one thing is happening कि जो कूलर जो हमारा है डेजर्ट कूलर, उसमें अंदर की तरफ काफ़ी मॉइस्चर जल्दी क्रिएट हो जाता है बिकॉज देर इज़ वेरी ड्राई एयर प्रेजेंट, है ना? तो वो जो मॉइस्चर तो वो जो ड्राई एयर है उसकी वजह से जल्दी इवेपोरेट होता है पानी जो पैड्स पे होता है, तो बेसिकली एयर काफ़ी ठंडी आती है। ऑल्सो वो जब ठंडी हवा हमें लगती है तो आर स्वेट इवेपोरेट्स इज क्विकली बिकॉज बेसिकली देयर इज़ नो मॉइस्चर प्रेजेंट अराउंड अस, है ना? तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। तो यू कैन बेसिकली राइट योर आंसर in comparison or in connection with lack of humidity around in the air, lack of moisture in the air. lack of moisture होता है जिसकी वजह से evaporation जल्दी होता है हमारी बॉडी से भी, और एयर जो डेजर्ट कूलर से आ रही है वो भी ठंडी हवा क्रिएट कर पाता है। दैट इज़ वाई वी फील और दैट इज़ वाई डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर, राइट? तो आपको इसको आपको अपनी लैंग्वेज में एक आंसर के अंदर पुट करना है। Okay, now let's move on to second question. How does the water kept in an earthen pot, that means matka, becomes cool during summer? Now this is again on the basis of the same evaporation principle कि जो समर्स में जो मटका होता है उसका पानी ठंडा कैसे रहता है। मटका हम सबके घरों में होता है, दैट्स अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ ए वेसल जिसमें हम पानी रखते हैं। तो मटका जो है वो कैसे ठंडा करता है? अब सी आई टेल यू वन थिंग, मटका इज मेड अप ऑफ मिट्टी, क्ले, राइट? एंड देर आर स्मॉल वेरी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑल ओवर इन दैट अर्दन पॉट, इन दैट मटका। बहुत बारीक से छेद होता है, दिखते नहीं इतना ईजिली, बहुत बारीक से छेद होते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ डे इट इज़ वॉट, इट इज़ मिट्टी, राइट? इट इज़ क्ले, इट इज़ सॉइल, उसमें पोर्स होते हैं प्रेजेंट। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि वो जो पोर्स हैं उन पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो ईजिली इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन जो है इट हैपन्स थ्रू दोज पोर्स। आप मटके को ढक के भी रख दो, उसके बाद भी मटका आपको थोड़ा सा गीला फील होगा बाहर से। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इवेपोरेशन हो पा रहा है वाटर का उन पोर्स के थ्रू। एंड एज वी नो, जैसे जैसे इवेपोरेशन होता है वैसे वैसे जो रिमेनिंग वाटर है पॉट के अंदर, जो पानी बचा हुआ है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है, राइट? सो इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है इनटू दिस क्वेश्चन, इनटू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हाउ डज़ द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो आपको बताना है दैट अर्दन पॉट में आपको पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है। एंड सिंस जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो जो रिमेनिंग लिक्विड है वो कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी लेस काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। अगेन इफ़ यू नीड टू अगेन अंडरस्टैंड द इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट, यू कैन look at the previous videos from this chapter. So that was the question number 2. You can use the concept of evaporation and answer in this, and the knowledge about the earthen pot key that it has pores in it and which helps the evaporation to take place and cool down the liquid. Now move on to question number 3.
Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume in it? अब ये चीज़ तो हम लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस की होगी एंड इन आर थ्रू आउट अप टिल दिस पॉइंट कि जब भी हम एसीटोन बेसिकली समथिंग विच यू विल फाइंड इन लेट्स से जैसे नेल पेंट रिमूवर होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसमें एसीटोन होता है. और अगर वो भी एग्जांपल इफ़ यू डोंट हैव देन पेट्रोल या परफ्यूम हम लगाते हैं अपनी स्किन पे तो हमें कोल्ड फील होता है, राइट, कूल फील होता है. पेट्रोल भी अगर आप टच करो, कभी किसी ने अगर टच किया हो तो वो भी हमें कूल फील होता है. तो why is that happening? Again there is an this is also based on evaporation कि we know that when particles or when molecules from a liquid evaporate, so they evaporate by gaining energy from their surroundings, है ना, from their surrounding molecules or from their surroundings they gain energy, और वो एनर्जी गेन करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, राइट. अब क्या होता है कि ये जो एग्जांपल्स हमने देखे एसीटोन है या पेट्रोल या परफ्यूम है, इसमें पार्टिकल्स के अंदर काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी होती है प्रेजेंट. सो व्हाट हैपन्स इज कि व्हेन यू पुट देम ऑन योर पाम लाइक एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, तो दे क्विकली गेन एनर्जी फ्रॉम योर palm. They quickly gain energy from the particles of your palm, molecules present in your on your skin. And when that happens, जब वो बहुत जल्दी एनर्जी गेन करते हैं वो मॉलिक्यूल्स, तो बेसिकली योर पार्ट ऑफ दैट स्किन कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है, बिकॉज उस एरिया के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई. तो यू नीड टू आंसर इट ऑन दैट बेसिस कि बेसिकली यू नीड टू relay in the answer that the particles or the molecules जो एसीटोन में हैं या पेट्रोल या परफ्यूम में हैं, they have high kinetic energy, और इसकी वजह से जो हम उनको अपने स्किन पे टच करते हैं तो वो बहुत जल्दी अपनी स्किन से मॉलिक्यूल से एनर्जी को गेन करते हैं और वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए गैस. ओके, तो वो वाली चीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट, ये लाइंस इस तरीके से आपको प्लेस करनी है इन योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? हम लोग हॉट टी, गरम चाय या फिर गरम मिल्क को सॉसर मतलब प्लेट, एक तरह की छोटी प्लेट जो होती है, उसमें से हम जल्दी क्यों पी पाते हैं और डायरेक्ट कप में से जल्दी नहीं पी पाते. ओके, आपको इसमें एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है इवेपोरेशन का, जो हमने देखे थे कि इवेपोरेशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन बेसिकली देयर वर 4 फैक्टर्स, जिसमें से एक फैक्टर था सरफेस एरिया. तो आपको वो चीज़ इसमें आंसर देनी है, बिकॉज सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो दैट इंक्रीजेज द इवेपोरेशन, जिसकी वजह से जो टी है, हॉट टी या मिल्क, वो ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है. जबकि जो कप है उसका सरफेस एरिया कम है, सो इवेपोरेशन भी स्लो होगा और इतना जल्दी वो ठंडा भी नहीं होता, गर्म रहता है. तो दैट इज़ वाई हम सॉसर में से उसको जल्दी पी पाते हैं. तो ये चीज़ आपको आपके आंसर में पुट करनी है अबाउट द सरफेस एरिया डिफरेंस बिटवीन अ सॉसर एंड अ कप और इवेपोरेशन का डिफरेंस. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 5. What type of clothes should we wear in summer? हमें समर में किस टाइप के क्लोथ्स पहनने चाहिए. तो देखो इसमें वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट समर में what should happen is हमारी बॉडी से स्वेट इवेपोरेट होता रहना चाहिए, राइट. हमारी बॉडी से जब स्वेट इवेपोरेट होगा तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, दे बिकम कूल, वो ठंडे हो जाते हैं, बिकॉज वी नो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, है ना. एंड वही रीज़न है कि हमें मानसून में गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा स्वेट इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि आसपास काफ़ी ह्यूमिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. तो अब हमें किस टाइप के क्लोथ्स पहनने चाहिए जिससे कि हमारा
जो समर्स में जो इवेपोरेशन है वो ईजी हो जाए, हमारे स्वेट का इवेपोरेशन ईजी हो जाए। तो बेसिकली what you need to do is wear the clothes that can absorb the sweat from your body। ऐसे कपड़े हमें पहनने चाहिए जो हमारी बॉडी पे जो स्वेट बन रहा है वो कपड़े उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि जब ये होगा तो फिर जो स्वेट है वो उन कपड़ों से इवेपोरेट हो सकता है। लेट्स जस्ट इमेजिन वन थिंग, लेट्स से हमारी बॉडी एक इस टाइप के क्लोथिंग से कवर्ड है, जैसे इस टाइप की क्लोथिंग हमने पहन रखी है जो लेट्स से मोस्टली पॉलिएस्टर या पॉलीथीन ऐसा किसी कंपाउंड से बनी हुई है ना। जब ये होता है तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे मटेरियल्स वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो बाहर से तो हम ड्राई दिखेंगे एकदम, राइट, बाहर से हम लोग एकदम ड्राई दिखेंगे बिकॉज हमारे क्लोथ्स बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, बिकॉज दे आर नॉट एब्जॉर्बिंग आर स्वेट, बॉडी स्वेट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। लेकिन अंदर से हम स्वेट करेंगे भयंकर, राइट, वी विल बी स्वेटिंग अ लॉट इनसाइड। और लेकिन वो स्वेट भी इवेपोरेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बाहर के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा हो, एयर के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा, वी आर कवर्ड बाय द क्लोथिंग दैट वी आर वेयरिंग। तो उस केस में यू विल नॉट फील कूल एट ऑल, यू विल फील वेरी वार्म, क्योंकि आपका स्वेट इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, लेट्स से इफ़ यू वेयर अ क्लोथिंग लाइक कॉटन इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड ऑफ स्वेट, लेट्स से, है ना। तो जब आप कॉटन पहनते हो तो कॉटन क्या करेगा, आपकी बॉडी के स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा। और जब कॉटन आपकी बॉडी के स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्वेट एक तरीके से फिर वहाँ से एयर में मिल सकता है, एयर में इवेपोरेट हो सकता है। तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि आपकी बॉडी का स्वेट कंटिन्यूसली इवेपोरेट हो रहा है बाय कंबाइनिंग विद द कॉटन एंड देन गेटिंग इवेपोरेटेड इन द सराउंडिंग्स और इन द एयर। तो वो चीज़ हमें क्या फील करवाएगी, कूल फील करवाएगी। सो बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वेयर इन समर, तो आपको इसमें आंसर देना है दैट कॉटन क्लोथ्स, बिकॉज दे हेल्प टू इवेपोरेट द स्वेट एंड कीप द बॉडी टेम्परेचर कूल। ओके, इस टाइप से आपको ये आंसर इसमें करना होगा। सो दीज वर द क्वेश्चंस विच आर प्रेजेंट इनसाइड the chapter, in the middle of the chapter. In our next class we will be doing exercise questions of this chapter, which will be present on page number 12. Again, remember that if you haven't done these question answers in your fair, or even if you have done these question answers into your fair, remember to send them over on or WhatsApp those answers to me, and I will check and see if there are any changes, कुछ भी हमें उसमें चेंज करना है या कुछ भी हमें उसको अगर बदलना है तो I will let you know and I will give you a feedback. आप लोगों को एक feedback मिलेगा on the basis of whatever you have written in your answers. Alright, so the remaining questions we will do in our next class.